الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوه قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من احب قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ أستغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب وأتوب إلیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب وأتوب إلیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب وأتوب إلیہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم ایک بہت ہی مبارک بابرکت اور پاکیزہ مجلس کے اندر حاضر ہوئے ہیں ہمارے عزیز ہمارے بیٹوں کی طرح ہمارے شاگرد حافظ محمد سلمان سلمہ ان کا آج نکاح مبارک ہوا ہے اور نکاح کی مناسبت سے انہوں نے ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ پہلے نمبر پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے مسنون نکاح پر۔ نمبر 2 ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسی مجلس کے انعقاد پر، ورنہ مجھ سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے نکاحوں پر ہمارے شادیوں پر مولویوں کے جلسے کم اور دوسرے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ اچھی فکر ہے، اچھی سوچ ہے کہ حقیقت میں یہی تبدیلی ہے اور ایسی تبدیلی مبارک ہو جو کہ گناہوں کی مجلس سے نکال کر نیکی کی مجلس لانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ اس موقع کی مناسبت سے آپ حضرات نے بڑے تفصیلی لمبے بیانات سنے ہیں، تو میں آج آپ کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں اپنا نظریہ فکر اور سوچ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ اتفاق کریں تو آپ کو میں ایک دعوت فکر عرض کروں گا۔ میرا نظریہ یہ ہے، توجہ فرمائیں گے، ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے ملا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہے۔ ہمیں قیامت کے دن جو کچھ ملے گا
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत की बरकत से मिलेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जल्ल जलालहू के पहले पैगंबर हैं, पहले इंसान हैं। जन्नत में रहते थे, जन्नत से बाहर आए, 40 साल इस दुनिया के अंदर गुजारे। अल्लाह जल्ल जलालहू के सामने गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, अल्लाह से मांगते रहे। अपने अल्लाह से अर्ज़ किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। एक ये दुआ है जिसको रब के कुरान ने नकल किया, एक वो दुआ है जिसको मेरे और आपके आका मौला के फरमान ने नकल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है हज़रत मोहम्मद का, मेरी ख़ताओं को माफ़ कर दे। अल्लाह जल्ल जलालहू ने पूछा, ए आदम तूने कैसे पहचाना मोहम्मद को? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत कहते रहा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैंने अभी तक उनको पैदा नहीं किया। अर्ज़ किया, या अल्लाह, जब आपने मेरा वजूद मट्टी से बनाया, मट्टी के बनाए हुए वजूद के अंदर आपने अपने हुक्म से रूह को फूंका, मेरे जिस्म में रूह डाली गई। मैंने आंखें खोली, अर्श को देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। मैं समझा ये नाम आम नहीं, ये नाम बड़ा ख़ास है, जिस नाम को तूने अपने नाम के साथ जोड़ा है। अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया, ए आदम तूने सच कहा, इससे बढ़कर मैं ये बात करता हूँ, अगर मैंने मोहम्मद को पैदा न करना होता मैं तुझे भी पैदा न करता। ए आदम, अगर मैंने मोहम्मद को पैदा न करता होता तो मैं पूरी कायनात को पैदा न करता। अब नतीजे पे पहुँचते हैं, हज़रत आदम न होते, आदमियत न होती, पहला इंसान न होता, इंसानियत न होती, हज़रत आदम पैदा हुए। सारे कायनात की आदमियत हज़रत आदम की वजह से हुए। पहला इंसान आया, क़यामत तक आने वाली इंसानियत हज़रत आदम की वजह से है। हज़रत आदम का वजूद मेरे नबी के वजूद का सदका है, मेरे नबी के वजूद का वसीला है। मेरे नबी के वजूद की वजह से हज़रत आदम को वजूद मिला, हज़रत आदम की वजह से मुझे और आपको वजूद मिला, मुझे और आपको वजूद मिला है। ये ज़मीन मिले, आसमान मिला, सूरज की रोशनी मिले, चांद का चमकना मिला, सूरज का दमकना मिला, पहाड़ों को बुलंदी मिले, सब्जे को सब्जा मिला, दरियाओं को रवानी मिली, फूलों को तबस्सुम मिला। खुलासा ये, इस कायनात के जर्रे जर्रे से लेकर अर्शे मुअल्ला तक जिस जिसको वजूद मिला है हुजूर की बरकत की वजह से मिला है। मेरे दोस्तों, पहले अंबिया आते रहे, अंबिया ने आकर लोगों को दावत दी, एक अल्लाह के दर पे झुकाने की कोशिश की, मखलूक को मखलूक की गुलामी से निकालकर एक खालिक की गुलामी में लाना चाहा। फिर वो लोग थे जिन्होंने वक़्त के नबी की बात को मान लिया। कुछ ऐसे भी बदबख्त थे जिन्होंने वक़्त के नबी की बात को न माना, एक एक गुनाह किया, नाफरमाने के, उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। किसी उम्मत ने झूठ बोला, तबाह बर्बाद हो गई। किसी ने नाप तोल के अंदर कमी बेशी की, तबाह बर्बाद हो गई। किसी ने बदकारी की, जमीन से उसको उठाया गया, आसमानों पे ले जाया गया, पटक के उनको फेंक दिया गया, तबाह बर्बाद हो गई। किसी ने नाफरमाने के, उनकी शक्लें खिंजीर और बंदर की बन गई। किसी ने नाफरमाने के, थोड़ी सी हवाएं चले, उनको चीख की वजह से अजाब आया, कान के अंदर कान फटे, कलेजा फटा, जिस्म तेज नैस हो गया। कोई ऐसे भी थे, उन्होंने ऐलान किया, सिर्फ तकब्बुर किया, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा कोई ताकतवर है तो आओ मेरा मुकाबला करो। फिर अल्लाह की तरफ से हवा चलती है,
कअन्नहुम आजाज़ नखलिन खाविया, औंधे वो खजूर के तनों की तरह पड़े थे, उठाने वाला कोई नहीं था। मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये बात अर्ज करता हूँ, सिर्फ सोचने और फिक्र करने की बात। एक वो उम्मत झूठ बोले तबाह हो जाए, झूठ बोले बर्बाद हो जाए, बदकारी करे हलाक हो जाए, पानी के जरिए से, हवाओं के जरिए से, चीख के जरिए से बर्बाद हो जाए, ज़कात ना दे बर्बाद हो जाए, शराब पिए बर्बाद ना हो जाए। आज मैं और आप अपने दाएं बाएं देखिए, मैं और आप अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखते हैं, कोई ऐसा गुनाह जो उस उम्मत के अंदर एक एक गुनाह की वजह से हलाक हुए थे, आज वो सारे गुनाह हमारे अंदर पाए जाते हैं। लेकिन देखिए तो सही, आसमान फटता क्यों नहीं, आसमान टूटता क्यों नहीं, जमीन फटती क्यों नहीं, सितारे टूटते क्यों नहीं, आसमान से बारिश का अजाब आता क्यों नहीं, तेज हवाएं चल के उम्मत बर्बाद होती क्यों नहीं? वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके आका मौला हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो दुआ है जो मेरे रब के पाक महबूब ने हाथों को उठाकर रात के अंधेरे में तने तन्हाई में सजदों में जाकर रुकू में जाकर रब के सामने गिड़गिड़ा कर मांगा, अल्लाह मेरी उम्मत को बर्बाद न करना, रब्बी उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत के चेहरों को न बदलना, ए अल्लाह मेरी उम्मत को जमीन में न दंसाना। मेरे अजीज भाइयों, हमारे गुनाह तो वो है, गुनाहों की वजह से अगर अजाब आना होता जमीन फट जाती, अजाब आना होता जमीन में दरस जाते, अजाब आना होता शक्लें खिंजीर और बंदर की बन जाती, नहीं बन रहे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ है। क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा। क़यामत क्या है, सिर्फ मैं तफसील में नहीं जाता। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जिस क़यामत की मंजर कशी की है, चंद एक बातें। अल-क़ारिया मल-क़ारिया वमा अदराक मल-क़ारिया यौम यकूनुन नास कल फराशिल मबसूत व तकूनुल जिबालु कल यहनिल मनफूत इज़ा समाउ शक्कत व अज़नत रब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुसिरत इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत। आसमान टूट जाएगा, जमीन फट जाएगी, आसमान के सितारे बिखर जाएंगे, सूरज गिर जाएगा और जमीन इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। फरमाया समंदर फट जाएंगे, ये दरिया ये बिखर जाएंगे, ये पहाड़ और के रेजा रेजा हो जाएंगे। फरमाया लोग कब्रें फटेंगी, कब्रों से लोग नंगे निकलेंगे, जिस्म पे कपड़ा नहीं होगा। वो सिद्दीका कायनात हया की ताजदार अम्मा आयशा सिद्दीका अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह क्या उस दिन लोग एक दूसरे को देखेंगे नहीं, नंगे जो होंगे, हया की ताजदार है। मेरे पाक महबूब ने फरमाया, आयशा उस दिन किसी को होश कहाँ होगा कि वो एक दूसरे को देख ले। वो दिन हशर का मैदान होगा, हशर के मैदान में मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया अल्लाह जल्ला जलालहू हालत जलाल में होंगे, हिसाब किताब शुरू नहीं होगा। फरमाया सारे अंबिया मिलके, सारे लोग मिलके हजरत आदम के पास जाएंगे, आप अबुन्नास है, आप अव्वलुन्नास है, अल्लाह से सिफारिश करे, हिसाब किताब शुरू हो जाए। फरमाएंगे नहीं, इनकार कर देंगे, माजरत कर लेंगे। वहां से लोग
हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पास, वहां से इनकार। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास, वहां से इनकार। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास, वहां से इनकार। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, वहां से इनकार। हज़रत सलमान के पास, वहां से इनकार। हज़रत इब्राहीम के पास, वहां से इनकार। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, वहां से इनकार। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, वहां से इनकार। चलते चलते लोग इमामुल अंबिया, फखरुर रसूल, सैयदुल बशर, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे आएंगे। फरमाया सब लोग मेरे पास आएंगे, आकर कहेंगे आप अल्लाह के महबूब हैं, आप शफाअत कीजिए, आप सिफारिश कीजिए। फरमाया मेरे महबूब ने, मैं सजदे में चला जाऊंगा, लंबी हमद बयान करूंगा, सजदा लंबा होगा, अल्लाह से अल्लाह की हमद बयान करूंगा। मेरे रब कहेंगे इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद सर उठाओ, सल्मो अतोहता, आप मांगे मैं दूंगा। फरमाया मैं सर उठाऊंगा, अल्लाह से अर्ज करूंगा ए मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत का हाल देखो, लोगों का हाल देखो, ए अल्लाह हिसाब किताब शुरू हो जाए। मेरे अल्लाह फरमाएंगे मजे की बात ये है, मेरे अल्लाह फरमाएंगे ए मोहम्मद हिसाब शुरू करते हैं, बतलाइए किससे शुरू करें? मैं अबू बकर को अल्लाह के सामने पेश कर दूंगा। अल्लाह के जलाल को जमाल में बदलने के लिए मेरे अल्लाह का जलाल जमाल में बदल जाएगा। सब हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। पहले अबू बकर, फिर उमर, फिर अली होंगे। हज़रत अली अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह उस्मान नहीं आएंगे? फरमाया नहीं नहीं, उस्मान को तो मैं हिसाब के लिए पेश भी नहीं करूंगा। मेरे अजीज भाइयों, मैं अर्ज करता हूं वहां का हिसाब किताब शुरू होगा। शफाअत है मेरे पाक पैगंबर की, मेरे नबी शफाअत न करे, हिसाब नहीं शुरू होगा। शफाअत करेंगे, मेरा और आपका काम बन जाएगा। वहां पे नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हज़रत आदम नफ्सी नफ्सी, हज़रत शीस नफ्सी नफ्सी, हज़रत नूह नफ्सी नफ्सी, हज़रत इब्राहीम नफ्सी नफ्सी। माना क्या है? मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा? हज़रत इब्राहीम नफ्सी नफ्सी, हज़रत मूसा नफ्सी नफ्सी, हज़रत ईसा नफ्सी नफ्सी, हज़रत रसूलुल्लाह उम्मती 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 उम्मती। मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा? एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अरबों लोग होंगे, हज़रत आदम से लेकर क़यामत की सुबह तक सारे लोगों का मजमा होगा, हशर का मैदान होगा। हम आपके गुलाम, आपके मानने वाले, आपके नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाले, हम आपके नाम लेने वाले, मेरा और आपका एक ही सहारा। या रसूल अल्लाह आप कहां पे होंगे, कहां तलाश करें? फरमाए तीन जगह पे पलसरात पे देखना, खड़ा होगा, अपनी उम्मत को गुजार कर वहां से अलग होगा और मैं मीजान पे खड़ा होगा। हिसाब किताब शुरू होगा, आखिरी उम्मत के हिसाब तक वहां पे खड़ा होगा। अब एक कौसर पे, हौज़े कौसर पे देख लेना, अपनी उम्मत को पानी पिलाऊंगा, वहां पे देख लेना। इन तीनों मकामात में से किसी एक पर मुझे जरूर पाओगे। मेरे भाइयों, मैं अर्ज करता हूं, मैं आपकी बात नहीं कहता, मैं आज अपनी बात अर्ज करने आया हूं। मैं अपना रोना रोने आया हूं। मेरे पास मैं समझता हूं क़यामत के दिन भी, आज भी उस नबी की जात के अलावा कोई सहारा मौजूद नहीं है। मुझे अपने अमाल पे नहीं है, अपनी नमाज पे नहीं है, ज़कात हज जिहाद पे नहीं है, माँ बाप की खिदमत पे नहीं है। सिर्फ एक सहारा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात का है। मैं अब आपके सामने एक और बात अर्ज करता हूं। आजकल भी धुंध का मौसम, सर्दी का मौसम, रात के 12 बज गए। एक मिसाल सिर्फ समझाने के लिए मिसाल अर्ज करता हूं, अपनी हाल अगर बयान करूंगा आपके सामने समझाने के लिए। मोटरवे का रास्ता, रात 12-1 बजे का टाइम, मैं समझाने के लिए सिर्फ, मैं मौजूद, मेरे बच्चे मौजूद, ये बीवी मौजूद, गाड़ी में चल रहे, बलकसर इंटरचेंज पहुंचते हैं। वहां से मोटरवे वालों ने
लगा दिया कि रिमूव कर दिया, नीचे उतर जाएं, आगे नहीं जा सकते। वजह क्या है? धुंध की वजह से मोटरवे बंद है, गाड़ी के अंदर फ्यूल पेट्रोल इतना नहीं है कि मजीद 2-3 घंटे चलाकर उसमें बैठे रहें। ठिठुरती रात में, सख्त सर्दी में आगे जाने का रास्ता मालूम नहीं। बलकसर इंटरचेंज पे वहां पे एक खड़ा नौजवान मौलवी साहब की शक्ल में हो और बुजुर्ग हो, वहां पे हमें गाड़ी को देखकर कहता है, बतलाइए आप कौन? मैं कहता हूं मुसाफिर। नाम क्या है? मुसाफिरों के नाम क्या होते हैं? मुसाफिरों को कौन जानता है? गरीबों को कौन जाता है? चाहते क्या हो? यहां पे खड़े क्यों हैं? खड़े इसलिए हैं मोटरवे पे आगे जा नहीं सकते, नीचे का रास्ता आता नहीं है, रात सर्दी है, धुंध में नजर नहीं आता, रात का अंधेरा है, रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, खाने को खाना नहीं है। ये कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा घर करीब है, आप गाड़ी का रुख इस तरफ कीजिए। रात गुजारी, इन्होंने खाने को दिया, पीने को दिया, बिस्तर दिया, मेरे बीवी बच्चों को घर में अलहदा पर्दे का इंतजाम किया। आप बतलाइए क्या मेरे लिए आप क्या कहते हैं? आपकी बात नहीं करता, सवाल मैं अपनी जात का करता हूं। अगर मेरे अंदर रत्ती बराबर गैरत हो, मेरे अंदर रत्ती बराबर हमीयत हो, तो मैं जिंदगी भर इस मौसम का एहसान नहीं भूल सकता। बोलिए भाई, मैं भुला सकता हूं? अगर मैं भुला दूं तो एहसान फरामोश मुझसे बड़ा इस कायनात के अंदर नहीं है, इस धरती पर नहीं है। और ये तो वो है जिसने अंधेरे के अंदर रहनुमाई की है, ये तो वो है जिसने मेरे बीवी बच्चों को सहारा दिया, मेरी जात को सहारा दिया। सुबह हुई, मौलाना ये रास्ता है, ये गाड़ी का रास्ता, मोटरवे खुल गई, आप चले जाएं। एक रात का एहसान फरामोशी नहीं कर सकता। अगर कोई करे उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं। मैं अपनी जुबान से अर्ज करता हूं, और वो मौसम कायनात, और वो मौसम इंसानियत, मौसम दुनिया, मौसम कब्र, मौसम आखिरत, मौसम पुलसरात, मौसम हशर, उसके हमने एहसानात को कैसे बुला दिया? हमने उसके एहसान को कैसे बुला दिया? मेरे अजीज भाइयों, इंसान पहचाना जाता है मौके पर, इंसान पहचाना जाता है किसी आजमाइश में। एहसान, वो पहचान क्या है? मैं तो कहता हूं मुल्ला आपने बड़ा एहसान किया, बड़ा एहसान किया। ये कोई एहसान का बदला एहसान नहीं है। अब ये कहीं सरगोदा आ गए, इनको जरूरत पड़ गई, रात के वक्त इनको जरूरत पड़ गई, ये कॉल करते हैं, मौलाना खुबैब साहब जी, खुबैब बात कर रहा हूं, मौलवी साहब मैं आपके इलाके सरगोदा में जा रहा था, मोटरवे वालों ने गाड़ी नीचे उतार दी, रात का वक्त है, कहीं और जगह नहीं है, आप मुझे अपने घर में जगह देंगे? मैं कहता हूं नहीं। आप बतलाएं, ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। और मैं कहता हूं मौलवी साहब एक रात की जगह नहीं दे सकता, लेकिन आपका एहसान जिंदगी भर भुला नहीं सकता। क्या कमाल की गुफ्तगू है, क्या इंसाफ है मेरे अजीज भाइयों, क्या इंसाफ होगा? वो मेरे और आपके आका, वो मेरे और आपके मौला, जिनके जिस्म पर मेरा रब मक्खी बैठना गवारा नहीं करे, वो रब का पैगंबर मेरे और आपके लिए रातों को खड़ा है, पांव सूज गए उम्मती उम्मती उम्मत की फिक्र में, कभी ताइफ में, कभी मदीना की गलियों में, कभी ओहद के मैदान में, कभी मैदान बदर के अंदर, कभी रुखसार पे पत्थर, कभी दांत शहीद करवा रहे, कभी खून निकल रहा है, कभी जवान पत्थर फेंक रहे। वजह क्या थी? मेरी और आपकी फिक्र मेरे महबूब को लगी हुई थी। हमें अपने आका से मोहब्बत, हमें आका का एहसान याद है, लेकिन मौका आए तो हम भूल जाते हैं, भूल नहीं जाते, हम जवाब दे देते हैं। मेरे भाइयों समझना, मैं बात अर्ज करता हूं, सिर्फ 2 बातें। नंबर 1, खुशी का मौका, शादी का मौका, ब्याह का मौका,
मेरे महबूब की शादियां नहीं हुई? एक नहीं 11 हुई। मेरे महबूब को अल्लाह ने बेटियां दी, 4 बेटियों के निकाह किए। मेरे महबूब को अल्लाह ने सहाबा दिए, सहाबा ने के निकाह हुए, अहले बैत बच्चे हुए, उनके निकाह हुए। आप बतलाना, ईमान से बतलाना, क्या मेरी और आपकी आज होने वाली शादी अहले बैत की शादियों की तरह है? महबूब की सुन्नत पर है। फिर यह कहना आका आपके एहसानात हैं, आप मेरे और आपके मोहसिन हैं, लेकिन बेटे दी शादी तुम्हारी सुन्नत नहीं कर सकता। यही जवाब है? क्या यही तरीका मोहब्बत का है? और मेरे अजीज भाइयों, सिर्फ चंद टकों की खातर, सिर्फ चंद लोगों की चंद बातों की खातर हमने अपने नबी को बुला दिया, नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, नबी का दिल दुखा दिया। इस मौके पर क्या वजह? लोग क्या कहेंगे? ए शादी है, लोग क्या कहेंगे? ए मरना है या ब्याह है? कुछ तो फर्क होवे ना। फर्क की है? ब्याह तो रो लेने, शादियां तो कंजर गा लेंगे। जिस पे कंजर आ जाए वो निकाह है, वो शादी है। मेरे अजीज भाइयों, मेरी और आपकी बेटी का निकाह है तो नबी की बेटियां हजरत फातिमा, जिनके नाम पर मैं पूरी कायनात को कुर्बान कर सकता हूं, अगर नबी चाहते कि उनके पास माल नहीं था, कुछ नहीं कर सकते थे, वो सब कुछ करने वाले। देखिए तो सही कैसे शादियां की हैं। शादियां निकाह करके, शादियां करके मुझे और आपको अपने और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है कि मेरी सुन्नत के मुताबिक चलो। मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। जो मेरे महबूब की एक सुन्नत को जिंदा करेगा, मेरा अल्लाह उसको 100 शहीदों का अजर अता फरमाएंगे। भाई सलमान साहब, उनके वालिदैन अजीजों कारब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सादा निकाह किया है, सुन्नत के मुताबिक किया है। अल्लाह पाक इनके निकाह के अंदर बरकतें अता फरमाए। मेरे अजीज भाइयों, हम किसको खुश कर रहे हैं? हम किसको खुश कर रहे हैं? महसूस ना फरमाएं। मैं 1-2 जुमले अर्ज करता हूं, 1-2 जुमले अपने दिल की तख्ती पे नोट करें। जब से निकाह मुश्किल हुआ, जब से निकाह मुश्किल और महंगा हुआ, तब से जिना सस्ता और आम हुआ है। अगर किसी बस्ती में, किसी इलाके में जिना आम हो रहा है तो समझ लो इस बस्ती के अंदर निकाह मुश्किल हो रहा है। आज बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं, बच्चे बूढ़े हो रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए। अगर बदकारी पे लग रही है तो उसकी वजह मेरे और आपके रस्म रिवाज हैं। रस्म रिवाज क्या है? जेज कोई नहीं की करिए, निकाह हस्ते पैसे कोई नहीं की करिए, शादी ब्याह हस्ते बारात हस्ते पैसे कोई नहीं की करिए। भैया मेरे यहाँ मौजूद होंगे, इनके निकाह पे मैं हाजिर हुआ था, उस वक्त भी मैंने अर्ज किया था, आज मैं फिर अर्ज करता हूँ। हमारे उलमा, हमारे हजरात निकाह पेश करते हैं प्यारे पैगंबर के, सहाबा के, अकाबरीन के, औलिया के, पिछले गुजरे हुए लोगों के। हर इंसान ये कहता है आजकल आज के दौर का मौलवी साहब ये मुश्किल है, वो तो पुराने बंदे सन वो कर गए, आज दे दौर दा कोई है तो दसो। कहते कि नहीं कहते? आज दे दौर दा कोई है तो वो दसो। मैं कहता हूं मैं हूं, मैं अपने आप को पेश करता हूं, अपने आप को पेश करता हूं। अल्लाह के नबी का एक वलीमा, मुख्तलिफ वलीमे हैं, उलमा तशरीफ फरमाए। एक वलीमा यह भी है अपने अपने घर से लो, दस्तरखान लगेगा, मिल के खाते हैं। इस दौर के अंदर मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसा नहीं है जिसने ऐसा वलीमा किया हो सिवाय मेरे, सिवाय मेरे। हम अपने आप को पेश करते हैं, हमने लोगों को नहीं अपने आप को पेश किया है। मेरे वलीमे पर 1 रुपया भी खर्चा नहीं है। हमने जिसको दावत दी है भाई कल वलीमा होगा, अपने घर से खाना ले आना, वलीमा होगा खाट से ले आना, खुदा की कसम जितने लोग उससे 10 गुना ज्यादा खाने, 10 गुना ज्यादा खाने।
मिकदार में भी और मेयार में भी, कमन कैफन, इतना मज़ेदार आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तुसी तो मौलवी हो, कर सकते हो, यही कहेंगे ना। हम सिर्फ मौलवी नहीं हैं, ये बात याद रखना। हम चक 87 जनूबी सरगोदा, किसी से पता करना, वहाँ की घुम्मन बरादरी नंबरदार है, हम गांव के नंबरदार भी हैं। इसलिए किया है ताकि लोगों को पता चले इस तरह भी किया जा सकता है। अल्लाह का शुक्र, 21 साल 20 साल निकाह को हुए, बरकतें ही बरकतें हैं, माल के हिसाब से, औलाद के हिसाब से। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस निकाह के अंदर खर्चा कम होगा उसमें बरकत ज्यादा होगी। 4 बेटियां 4 बेटे, औलाद के लिहाज से बरकत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा बेटा भी 4.5 का है, बढ़िया बेटियां और बेटे सब मदरसे के अंदर पढ़ रहे हैं, हाफिज भी बन रहे हैं, आलिम भी बन रहे हैं। अल्लाह का शुक्र। मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरे अजीज भाइयों, निकाह सादा करेंगे तो होता नहीं है। दूसरी बात, आम तौर पे एक रस्म और रिवाज है, बेटी बूढ़ी हो रही है, क्या करें, जहेज नहीं है। और जो बेटे वाले हैं वो भी ये कहते हैं, क्या करें, वलीमा नहीं हो रहा, पैसा नहीं हो रहा, बारात नहीं है। बारात उलमा तशरीफ फरमाए सुन्नत से बिल्कुल साबित नहीं है। 2 4 20 50 100 बंदे, भाई लड़की लेकर आना है या जगह पे कब्जा करने जाना है? कब्जा करने जाना है। वो बच्ची जाए, लेकर आ जाए, काम खत्म, निकाह हुआ, बस उसके बाद रुखसती हो गई, 5-10 बंदे बैठे, खाना खाएं, वलीमा भी हो गया। आज मैंने बैठे सलमान, मैंने उनको कहा है आज वलीमा है या दावत है? कहते हो साजी दावत भी है, वलीमा भी है, निकाह सुबह हुआ है, सब कुछ। मैंने कहा नहीं, ये गलत है। आज इस तकरीब के वास्ते से मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं, वलीमा निकाह है, निकाह के बाद एक रात गुजर जाए, दूसरे दिन वलीमा है, अभी निकाह के फौरी बाद ये वलीमा नहीं है। मैंने अर्ज किया है कल दोबारा वलीमा करना, बेशक 5-10 अपने घर के लोग, उनको खाना खिलाना और वलीमे की नीयत से खिलाना, वलीमे की नीयत से खिलाना। ये वलीमा कहाँ है? लोग क्या करते हैं, सुबह बारात जाएगी, आज शाम को खाना है, हमारे बच्चे का आज वलीमा है, वाह, शाबान में रमजान के रोजे रख लिए। ऐसा होता है, शाबान में रमजान के रोजे रखे जा रहे हैं। और भाई वलीमा रुखसती के बाद है, रुखसती के बाद वलीमा है, रुखसती से पहले वलीमा नहीं है। इसको दावत कह लें, बरादरी का खाना कह लें, जो भी उन्वान दे सकते हैं दे ले, लेकिन इसको वलीमा मत कहें। खुदारा जुल्म मत करें, मंदिर को मस्जिद न कहें और मस्जिद को मंदिर न कहें। बस मेरे अजीज भाइयों, एक और बात अर्ज करते हैं, आमतौर पे ये खामन की जिम्मेदारी है कि वो अपने आने वाली बीवी के सामान का इंतजाम करे। लड़की के जिम्मे नहीं है कि वो जहेज लेके आए, वो बेड लेके आए, वो बर्तन लेके आए। मैं कोई बड़ी बात ये नहीं कहता, मेरे मुंह से निकल जाए। अजीब लोग हैं, बीवी के बेड पर यूं लेट के कहते हैं पानी ले आना उस गिलास से जिसे तेरी मां ने दिता है। तो तू क्यों नहीं दिता है? आपने क्या दिया है? जो आदमी अपनी बीवी के लिए बीवी का बिस्तर भी तैयार नहीं कर सकता, उसको इतना सा पानी लेना चाहिए और उसमें गोता लगा के खत्म हो जाना चाहिए। ये हंसने वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा तो ज़हरा को भी तो जहेज दिया था, कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं। नबी की बेटियां कितनी हैं? जो आले सुन्नत है वो तो बोले 4। हजरत अम्मा फातिमा का जहेज नजर आता है, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, 3 बेटियों का जहेज किधर है? सिर्फ बात समझने की है। हजरत फातिमा तो ज़हरा को जो चक्की दी है, जो सामान दिया है और जो मशकीज़ा दिया है, मशहूर चीजें, ये हजरत फातिमा को नहीं दी, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
उनकी तरबियत में थे, उनकी परवरिश में थे। एक एतबार से हजरत अली नबी के बेटे हैं, उन्होंने अपने बेटे के इंतजाम किया है, हजरत फातिमा को नहीं दिया। मेरे नबी ना इंसाफी नहीं करते, इंसाफ करने वाले हैं। अगर देते तो चारों को देते, एक को दिया है तो इसका मतलब हजरत अली को दिया है, हजरत फातिमा को नहीं दिया। आज हम भी इसका शुरू फरमाएं, अपने बेटे का सामान खुद तैयार करें। मेरा बेटा आपका निकाह होगा, ये आपका बेड बना दिया, अलमारी बन गई, बिस्तर बन गए, सामान बन गए। बेटी वालों को कहो आप पे हराम है, आप एक चीज भी दें, हम खुद इंतजाम करेंगे। ये इसलिए नहीं कहना मैंने खुद किया है, मैं अपने आप को पेश करता हूं। हमारे घर से, घर वालों से जब मेरी शादी हुई है तो सिर्फ एक जोड़ा पहन कर आई है। उन्होंने कहा था ये रस्म समझे, रिवाज समझे, जो भी है, एक बार एक जोड़ा में पहनाने दे, बाकी जिंदगी भर आपकी है, आप जाने आपकी बीवी जाने। एक जोड़ा पहन के आई है। और उस वक्त उनके घर वालों ने, हमें इल्म नहीं था कि सामान तैयार किया ये नहीं किया, 3 बिस्तर उन्होंने साथ दे दिए थे। टोयोटा गाड़ी, टोयोटा में कितनी सवारियां आती हैं? 8, 9, वैसे 18 भी होती हैं। हम 5 या 6 गए थे, उसी में वो भी बैठ के आई थी और उसी में 3 बिस्तर थे। 8-10 दिन के बाद ऐलान हुआ था अफगानिस्तान में तलबा को जरूरत है, वो तीनों बिस्तर उठा के उन्होंने दे दिए थे। बाकी आज तक अल्लाह का शुक्र, अपना बिस्तर, अपने बिस्तर, अपना सामान, अपने बर्तन, अपना घर है। बीवी की तरफ से कोई चीज नहीं है। क्यों? ये खामद की जिम्मेदारी है। कुछ हमीयत का मुजाहरा करें। मेरे अजीज भाइयों, मैं इस निकाह के वास्ते से आप हज़रात से गुजारिश करता हूं, मैं और आप सुन्नत शादियां करें, इस्लाम के मुताबिक शादियां करें, अपनी शादियों को सुन्नत के मुताबिक बना ले। सिर्फ एक गुजारिश अर्ज करता हूं, आप हज़रात और मैं, चूंकि हम लोग हिंदुस्तान रहे या हिंदुस्तान वाले यहाँ रहे, यहाँ से वहाँ चले गए या वहाँ से यहाँ आ गए, उन्हीं की रसूमात हमने आज तक ख़त्म नहीं की। ये मेहंदी, ये खारा, ये मंगने और ये मायों, ये सेहरा, ये गाना और ये जहेज, लंबे लंबे ये लंबी लिस्टें, ये मुसलमान नहीं, इस्लाम नहीं, बल्कि हिंदू मत की रसूमात और उनके रिवाज हैं, जिनको आज तक हम लोग परवान चढ़ा रहे हैं। अगर नहीं यकीन आता, ये मेरे नौजवान दोस्त खुसूसन उनके लिए गुजारिश करूंगा, बूढ़े तो नहीं, बूढ़े इस बात को कम समझेंगे, नौजवानों से गुजारिश करूंगा। मैं दावे के साथ एक बात अर्ज करता हूं, आपसे भी अर्ज करता हूं, एक निकाह, अमूमन जो हमारे यहां शादियां हो रही हैं उसके अंदर निकाह और ये कलमात इजाबो कबूल, उसको इससे निकाल कर इस तरफ रख दें, एक तरफ रख दें, और फिर हिंदू के उस शादी को जो उनके साथ फेरे चक्कर लगते हैं उसको इस तरफ रख दें। अब शादी मुसलमान की या हिंदू की, इसके अंदर इतना भी फर्क करके मुझे दिखा दे, इतना भी फर्क, लिबास उन जैसा, टोपियां पगड़ियां उन जैसी, नाचना गाना उन जैसा, मेहंदी का लिबास, ये बारात का लिबास, ये ढोलक, ये नाचना, ये गाना, ये मेहंदी, ये मायों, ये खारा, ये सब रस्में उन हिंदुओं की हैं, मुसलमानों की नहीं है। मेरे दोस्तों, हम अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले, हम नबी के गुलाम, हमें चाहिए हम अपनी शादियों को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा करें। अल्लाह ताला जो मैंने कहा, जो मैंने अर्ज किया, सबसे पहले मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप तमाम भाइयों और दोस्तों को भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।